So, hope you will be doing fine. So, we are continuing our lectures on the sexual reproduction in the plants. As per the main part of the plant which is involved in the sexual reproduction is flower, and we have discussed in our series of lectures the different parts of the flowers. And now an important aspect of the sexual reproduction is concerned. We have discussed an important act of the sexual reproduction, that is pollination. So today our topic is pollination. So we are going to discuss pollination. What pollination is, what is the importance of pollination, and what are the different types, methods of the pollination. So simply, pollination is one of the important and act in the sexual reproduction in the plants. So what do you mean by pollination? Pollination is simply the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower. So pollination is the process. It is the process of transfer. It is the process of transfer of pollen grains or microspores. So pollen grains are also known as microspores. यहाँ पे हमने एक बात याद रखनी है कि pollen grains का दूसरा नाम microspores हैं. So microspores is the another term used for the pollen grains because they are small sized. That is why they are known as micro, means small, and spores the reproductive structures. So these are the small reproductive structures which are going to be future male gametes. So that's why they are also known as microspores. So the transfer of the pollen grains or the microspores from anther of the stamen to the stigma of the carpel. So the act of the transfer of pollen grains or microspores, we can say, from the anther of the stamen to the stigma of the carpel. As you know, anther is the male part of the flower, and the group of the stamen is called androecium. So anther is the part of stamen, male part of the stamen is the male part of the flower. So anther is the swollen part which contains microspores or the pollen grains, also known as microsporangia. So microsporangia is the pollen grain bearing structure. So pollen grains हमारे stamen में anther में होते हैं. So it is the site of the pollen grains. यहाँ pollen grains होते हैं, तो यहाँ से pollen grains transfer होते हैं the receptacle part of the carpel, that is stigma. It is a receptacle part. So pollen grains का anther से stigma तक transfer होना, इसको हम बोलते हैं pollination, and it is one of the important steps as per the sexual reproduction is concerned, because pollination is important for fertilization, that is fusion of male gamete with the female gamete. For that fusion, pollination is very important. So pollination is important for the fertilization, that is fusion of male gamete with the female gamete, and formation of seeds and fruits. So pollination is important for the fertilization and formation of seeds and fruits. So after fertilization, that is post pollination changes. जब pollination होगी उसके बाद fertilization होती है, और fertilization में हमें seed बनता है और fruit बनता है. So अगर pollination नहीं होगी तो हमें seed और fruit नहीं बनेगा, क्योंकि fertilization नहीं होगी. ठीक है, तो हमारे पास seed or fruit बनने के लिए pollination is important, as it leads to fertilization, and fertilization leads to the formation of seeds and fruits. We have certain fruits which does not contain seeds.
So which does not contain seeds like parthenocarpic fruits. Parthenocarpic fruits. तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है सर कि फ्रूट्स तो हमारे पास सीड्स के बगैर भी हैं, तो वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो फ्रूट्स तो हमारे पास आते हैं बाय द पार्थेनोकार्पी. सो इसीलिए यहाँ पे जो एसेंशियल क्राइटेरिया है वो है ये, दैट इज fertilization. Actually pollination actually is important for fertilization and formation of seeds, because we can have fruits without fertilization, that is the fruits without seeds, but for the formation of seeds pollination is very important. Pollination, and when pollination occurs that fertilization occurs. ठीक है. So pollination जो है इससे seeds बनते हैं. So pollination is important for fertilization and for the formation of seeds. So simple as such, what is pollination? It is simply the transfer of pollen grains or microspores from the anther to the stigma of the flower. तो जब pollen grains anther से after maturation stigma तक ट्रांसफर होते हैं, this act is known as pollination. मैं simply इसको समझाऊंगा डायग्राम के जरिए, आपके पास हैं. So we have the diagram of the flower. We have the diagram of the flower. We have the diagram of the flower. So we have simply the diagrams here. So according to diagram, I will make you understand the pollination, what pollination is. So pollination is the transfer of pollen grains after the maturation of the anther, after the descent of the anther. जब anther फट जाता है तो pollen grains release होता है. तो pollen grains जब release होते हैं वो transfer होते हैं from anther to the stigma, because stigma is the exposed part of the carpel, the female part, and it is the receptacle part. It receives the pollen grains, or it is the landing site of the pollen grains. So this transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. So it is important step for the formation of seeds and for the formation of fruits, and it is important step for the fertilization. And अगर हम गौर से इस डायग्राम को देखेंगे, if we look minutely on the diagram, we will go through this understanding that pollination is of two types. We have two types of pollination. That is the pollination in the bisexual flowers. Here we have bisexual flower or intersexual flower. This flower which have the two male and female parts, the two essential parts in the same flower. यानी एक ही flower में हमारे पास male भी part भी है, female part भी है. Such flower is called bisexual flower or intersexual. So the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. ये flower एक ही है. इसी के स्टैमिन से, इसी के कार्पल पे या इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स. दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. एंड अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं. सो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, एंड दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. So we have two types of pollination. We have self-pollination and we have cross-pollination. So as you know, pollination is the transfer of the pollen grains from anther to the stigma. So self-pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower, and the cross-pollination is the transfer of the pollen grains from anther to the stigma of the two different flowers. So as per diagram, we have got it that pollination is of two types. So as per the simplification, I will make it easy
for you. So we have two types of pollination. We have self-pollination and we have cross-pollination. Cross-pollination. We have cross-pollination. These are the two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. Cross-pollination is also known as allogamy or xenogamy. Cross-pollination also known as allogamy or xenogamy. So what is self-pollination? Pollination आपको अच्छे से समझ आ गई, pollination आपको पता है. तो self यहाँ पे एक ही फ्लावर, ठीक है, या एक ही प्लांट की तरफ इशारा होता है, ठीक है. So self-pollination क्या हुआ? The transfer of pollen grains, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोर्स भी. The transfer of pollen grains or microspores from, ये तो आपको पता ही है कहां से, from anther of one flower, from anther to the stigma of the same flower, और यहां पे एक बात जरूर याद रखनी है, जो कंफ्यूजन होता है हमेशा बच्चों को इस सेल्फ पॉलिनेशन में, वो ये है कि जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं, और वो ये पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट गौर से आप देखें और अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा. दैट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower, to the stigma of another flower, but of the same plant. यहां पे क्वेश्चन का आंसर है. क्वेश्चन यहां पे ये हुआ होगा कि सर अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन को डिफाइन करते हो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का या माइक्रोस्पोर्स का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो सेल्फ पॉलिनेशन, यानी फ्लावर एक ही है तो सेल्फ आएगा इसमें. लेकिन यहां पे तो आप बात कर रहे हो फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो जैसे ये लगता है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन यहां पे आपने देखना है बेटा कि यहां पे जो एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, मैंने कहा बट ऑफ द सेम प्लांट, यानी दोनों सूरत में प्लांट एक ही है. सो अगर मैं ये बात करूंगा कि सेल्फ पॉलिनेशन में हमें एक ही प्लांट चाहिए, वन प्लांटेड पॉलिनेशन, वन प्लांट इज रिक्वायर्ड, इसमें खाली एक प्लांट चाहिए. सो प्लांट में क्या होगा, देखिए याद रखें, इधर से मैं अगर आप सिंपली आपको बताऊंगा, तो हमारे पास एक फ्लावर है, ये उसका एंथर है, ये स्टैमिन, और ये उसका कार्पुल है. तो अगर यहां से इसी के एंथर से, इसी के एक ही फ्लावर के, उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन यहां पे ये भी हो सकता है इसी फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं. सो एक फ्लावर के अंदर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स क्रॉस हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन प्लांट एक ही है. सो दिस इज आल्सो सेल्फ पॉलिनेशन. सो यहां पे प्लांट एक ही है, सो ओनली वन प्लांट इज रिक्वायर्ड इन द सेल्फ पॉलिनेशन. सो इट इज वन प्लांटेड पॉलिनेशन, आई कैन से इन अदर वर्ड्स. सो जो सेल्फ पॉलिनेशन है, दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या एक ही फ्लावर होगा, ठीक है, या एक फ्लावर के अंदर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, बट ऑफ द सेम प्लांट एंड ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट. यहां पे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट भी होते हैं, ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स, ठीक है. सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन can be defined in two ways. So I can say self pollination जो है, इसको हमने और दो टाइप्स की हैं. Self pollination is also of two types. Self pollination भी
हमारे पास दो टाइप्स की हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेम फ्लावर और डिपेंडिंग ऑन द टू डिफरेंट फ्लावर्स बट ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, दो कंडीशंस हैं, या तो फ्लावर एक ही होगा या तो दो फ्लावर होंगे, लेकिन प्लांट तो सेल्फ पॉलिनेशन है तो प्लांट तो एक ही है। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी and autogamy. So auto means same और self और same भी हम कह सकते हैं, गैमी means marriage। ठीक है, सो मतलब क्या हुआ, एक ही फ्लावर, उसी फ्लावर का एंथर है, उसी फ्लावर का स्टिग्मा है, जैसे बाइसेक्सुअल कंडीशन मैंने आपको डिफाइन की थी। सो द ट्रांसफर ऑफ ऑटोगैमी, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर from the anther to the stigma of the same flower. This is called autogamy, and it is also self-pollination. And we can have genitogamy. It's the transfer of the pollen grains from one flower to the anther of the another, from anther of one flower to the stigma of another flower, but of the same plant. Same plant. But यहाँ पे फ्लावर भी सिमिलर है, यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, लेकिन इसमें भी प्लांट सेम, इसमें भी प्लांट सेम। सो सेल्फ पॉलिनेशन, बट इट इज ऑटोगैमी बिकॉज फ्लावर एक ही है। इट इज जेनिटोगैमी बिकॉज इसमें दो फ्लावर है। सो व्हाट इज ऑटोगैमी, नाम से ही हमें पता चलेगा। नाम से क्या पता चला कि इसमें ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से बेटा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। हाँ जी, शाबाश, अच्छे जा रहे हैं आप। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बट क्या लिखेंगे, शर्त क्या है बेटा, सेम फ्लावर। So in autogamy we have the pollen grains get transferred from the anther to the stigma but of the same flower, यहाँ पे फ्लावर भी एक ही है। तो यहाँ पे जेनिटोगैमी, इट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन, बट ये वो टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें दो फ्लावर है, याद रखना, दो फ्लावर बट प्लांट सेम है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर, इसमें भी ट्रांसफर, तो पॉलिनेशन ट्रांसफर ही होते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। हाँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यहां पे भी वही, कहां से, एंथर टू स्टिग्मा, ये तो सेम बात है, लेकिन मसला है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावर्स यहां पे दो डिफरेंट है, बट ऑफ सेम प्लांट, यानी प्लांट यहां पे सेम है। देखो, ये कंडीशन हो या ये कंडीशन, इसमें प्लांट भी एक ही लेकिन फ्लावर भी एक ही। इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर्स दो हैं। यहां से इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे, यहां पे क्या हुआ, इसी के एंथर के इसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। और यहां से प्लांट एक ही है लेकिन एक फ्लावर का एंथर वहां से ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, उसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। So self-pollination, it includes the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the two flowers of the same flower, but of the same plant. Both the flowers belong to the same plant. ठीक है, इसको हम बोलते हैं self-pollination. That's why self-pollination is divided into two types, autogamy and jitonogamy. यहाँ पे फ्लावर भी एक, प्लांट तो ऑलरेडी एक है, यहाँ पे फ्लावर दो है, प्लांट तो सेम है, इसलिए प्लांट सेम होने की वजह से ये भी सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन, बट यहाँ पे फ्लावर दो है। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द 10th क्लास, बट इसमें आपको हायर क्लासेस के लिए भी मिलेगा। तो अगर हम इसके बाद देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होती क्यों है, सेल्फ पॉलिनेशन किन फ्लावर्स में होती है या किन वजहों से सेल्फ पॉलिनेशन, व्हिच फैक्टर्स लेड टू सेल्फ पॉलिनेशन, कौन से इसको फेवर करते हैं। सो व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब मैं शॉर्टकट करने जा रहा हूं इसका, तो शॉर्ट में आपको समझाने की याद रखेंगे तो आप हायर क्लासेस के लिए मिलेगा और 10th के लिए भी मिलेगा। सो कंट्रोवर्सीज, व्हिच फैक्टर्स लेड टू द सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें जो पहला फैक्टर है वो है होमोगैमी। होमो मीन्स सेम, गैमी मीन्स मैरिज। सो इसमें क्या होता है जनाब, इसमें जो एंथर है यानी स्टिग्मा स्टैमिन है
और जो मेल पार्ट है स्टैमिन और जो फीमेल पार्ट है कार्पल, इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों एट अ टाइम मैच्योर होते हैं, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम मैच्योर होते हैं। तो जब दुल्हा भी मैच्योर हो, दुल्हन भी मैच्योर हो, एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाट इज होमोगेमी? इसमें क्या होता है? इसमें एंथर और स्टिग्मा, शॉर्ट में आप याद रखेंगे, एंथर और स्टिग्मा जो है वो मैच्योर, दे मैच्योर simultaneously at same time, वो इकट्ठे मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो जब वो मैच्योर एट अ टाइम हो जाएंगे तो फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, और दिस एक्ट इज कॉल्ड होमोगेमी। जैसे आपको पोटैटो में याद होगा, हमारे पास पोटैटो है तो उसमें क्या होते हैं, फिलामेंट्स ज्यादा ग्रो करते हैं, तो फिर वो एंथर बेंड होता है और वो पोलन ग्रेन स्टार्ट करता है स्टिग्मा पे। सो उसमें स्टिग्मा भी और एंथर भी मैच्योर होते हैं सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड होमोगेमी, ठीक है। सो दूसरा हमारे पास है we have homogamy, we have also clastogamy। तो दूसरा फैक्टर है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है, clastogamy। Clasto, as the name clasto, it means hidden or closed। So ये क्या होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं। तो उन जो फ्लावर्स क्लोज रहेंगे, यानी उनका एंथर जो है वो एक्सपोज ही नहीं होता, स्टिग्मा एक्सपोज ही नहीं होता, तो उनमें कोई चांस ही नहीं है इसके बगैर कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करें। सो द phenomenon of bearing, the phenomenon of pollination in the closed flowers, इसमें फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते हैं, उनमें जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं क्लास्टोगेमी, एंड इन फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लास्टोगेमिक फ्लावर्स, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, वी हैव क्लास्टोगेमिक फ्लावर्स व्हिच रिमेन क्लोज्ड, सो उनको हम बोलते हैं क्लास्टोगेमिक फ्लावर्स, और उनमें क्लास्टोगेमी होती है क्योंकि वो ओपन ही नहीं होती है, तो उनका कोई चांस ही नहीं होता। उसमें तो जरूरी लाजमी है कि उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन जाएंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोज्ड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लास्टोगेमिक, ठीक है। तो कुछ फ्लावर्स हमारे पास होते हैं, जैसे मेनली क्या होते हैं, उनको बोलते हैं चैस्मोगेमिक फ्लावर्स, ठीक है। वो ओपन होते हैं, ओपन उनके फ्लावर्स, जैसे हमारे पास यूजुअली फ्लावर्स होते हैं उनके स्टिग्मा वगैरह एक्सपोज्ड होते हैं, लेकिन क्लास्टोगेमिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनमें क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करता हूं, जैसे ग्राउंड नट में अगर आप देखोगे, ग्राउंड नट हमारा पास जो होता है ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट में क्या होता है, क्लास्टोगेमी के बाद जब पॉलिनेशन होती है क्लास्टोगेमी के बाद, यानी जो क्लास्टोगेमिक फ्लावर्स होते हैं जब उनमें क्लास्टोगेमी होती है, सो आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स go into the soil and develops into the fruit, वो फ्रूट बनाते हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं जियोकार्पी, formation of fruits under the ground, so this is called the geocarpy। So in groundnut clastogamy is followed by the geocarpy, यानी उसमें क्या होता है, अंडर सॉइल फ्लावर जाते हैं आफ्टर पॉलिनेशन और वो डेवलप होते हैं इनटू द फ्रूट, लेकिन फ्रूट बनता है जमीन के नीचे, उसको बोलते हैं जियोकार्पी। सो our topic was pollination, and I have discussed it in detail what pollination is, transfer of the pollen grains to anther to stigma, and we have two different types of pollination, that is self pollination and cross pollination। but self में भी हमारे पास दो types हैं, we have autogamy and we have jejunogamy, and उसके बाद the contrivances which led to the self pollination, or the factors which favor the self pollination, one is homogamy, that is the simultaneous maturation of the anther and the stigma of the flowers, ठीक है। उसके बाद क्लास्टोगेमी, दैट इज द बियरिंग ऑफ द क्लोज्ड फ्लावर्स, द फ्लावर्स व्हिच डज नॉट ओपन, वो ओपन ही नहीं होते हैं, इसलिए उनमें एक ही चांस होता है, वो है क्रॉस पॉलिनेशन, तो उनमें होगा ही नहीं क्योंकि वो ओपन ही नहीं होते हैं, तो उनमें अपने ही एंथर के पोलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं और पॉलिनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड क्लास्टोगेमी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट ये बोला कि जो ग्राउंड नट है उसमें क्लास्टोगेमी के बाद जब पॉलिनेशन होती है इन क्लोज्ड फ्लावर्स में, फ्लावर किधर जाते हैं, नीचे सॉइल में जाते हैं, और सॉइल में वो डेवलप होते हैं फ्रूट में, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड जियोकार्पिक फ्रूट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस phenomenon is called जियोकार्पी।
So now कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सैलिस है, जैसे हमारे पास ऑक्सैलिस है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एम्फिकार्पी होता है, एम्फिकार्पी, एम्फिकार्पी, तो इसमें एम्फिकार्पी होती है। और इस एम्फिकार्पी, इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, इसमें क्लास्टोगैमिक भी होते हैं, क्लास्टोगैमिक, और इसमें होते हैं चैस्मोगैमिक फ्लावर्स। इसमें चैस्मोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं और इसमें क्लास्टोगैमिक्स भी होते हैं, यानी वो फ्लावर जो क्लोज्ड रहते हैं और जो फ्लावर्स ओपन रहते हैं, ओपन फ्लावर्स, यानी वो ओपन होते हैं, उसमें एंथर, स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स एक्सपोज होते हैं, और इसमें बंद रहते हैं, वो एक्सपोज ही नहीं होते हैं। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होती है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ऑक्सैलिस में क्या होता है, वो इन अर्ली सीजन क्या होता है, उसमें चैस्मोगैमिक फ्लावर्स वो बियर करता है, उसमें चैस्मोगैमिक फ्लावर्स ओपन होते हैं, और वो फ्लावर जो होते हैं चैस्मोगैमिक फ्लावर्स, तो उसमें जब क्रॉस पॉलिनेशन फेल होती है तो लेटर इन द सीजन वो क्लास्टोगैमिक फ्लावर्स बियर करते हैं और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, वो तो आपको पता ही है। सो ऑक्सैलिस में दोनों होता है, इन द अर्ली सीजन यानी समर्स में, अर्ली सीजन में चैस्मोगैमिक फ्लावर्स, अगर क्रॉस पॉलिनेशन फेल होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन बाय bearing the clastogamic flowers, that is closed flowers. So इसमें दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, such phenomena is called amphicarpy. तो इसमें chasmogamic फ्लावर्स भी होते हैं और clastogamic फ्लावर्स भी। अगर क्रॉस पॉलिनेशन फेल होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें डेफिनेट तरीका है। सो ये ऑक्सैलिस में होता है। और ग्राउंड नट में मैंने आपको क्या कहा, क्लास्टोगैमिक आफ्टर इज फॉलोड बाय द जियोकार्पी। अब तो चूंकि इसमें 10th का लिहाज हमने ज्यादा रखना है, तो अब उसके बाद आएंगे क्रॉस पॉलिनेशन पे, क्रॉस पॉलिनेशन पे, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन